Arjuna had come to the battlefield with a firm resolve and a sense of duty. Being a Kshatriya, fighting was in his blood. Every attempt to avoid war has failed. The Pandavas has pitched their claim at the minimum, and Krishna himself had tried to meditate, but all in vain, making a war inevitable. In these circumstances, Arjun had brought together many kings, made Krishna his charioteer, and is now on the battlefield. अब अर्जुन उनको सेंस ऑफ ड्यूटी थी, वो क्षत्रिय थे, सब जानते हैं क्षत्रियों के अंदर जो उनका जो ब्लड होता है वो फाइटिंग स्पिरिट का होता है। और सामने पांडव आ चुके थे और इनने काफ़ी राजाओं को अपने साइड लिया था। कृष्ण इनके सारथी बने थे जैसे कि सब जानते हैं, और ये बैटल फील्ड में खड़े हुए थे। ही आस्क्ड कृष्ण with heroic ardor, place my chariot between the two armies so that I can have a look at the people who have assembled here to fight with me. Krishna compiles. Arjun looks both the side. He finds four generations of his own people intent on fighting to the finish. Okay. Arjun looked around, and what does he see? He finds his kith and kin, near and dear ones, arrayed on both the sides. He finds fourth generation of his own people intent on fighting to the finish. It is not that Arjun had no idea of what he was going to see, but the actual sight, as is always the case, had a devastating impact. Seeing his kingsmen on the battlefield, Arjun lost his nerve and deep anguish assailed his heart. ओके अब यहाँ पर ये बताया गया है कि इनने कृष्ण से कहा, जो इनके सारथी थे, जो चैरिट चरा रहे थे, इनने कहा कि दोनों आर्मी के बीच में मुझे खड़ा करो और बताओ, मुझे मुझे देखना है कि कैसे बैटल फील्ड के बीच में सब लोग कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं। तो यहाँ पर जब इनने देखा तो इनको पता चला कि इनके ही सारे रिश्तेदार हैं, 4 जनरेशन्स के लोग हैं जो सारे इन्हीं के हैं और सब एक दूसरे से लड़ना चाह रहे हैं फिनिश तक लड़ने का मतलब होता है कोई ना कोई लोग मरने वाले हैं, और एक साइड वाले मरते हैं तभी दूसरे साइड वाले जीते हुए माने जाते हैं, या फिर वो ये कह दें कि हम युद्ध हार चुके हैं और हम आगे लड़ना नहीं चाहते। तो वो ज़्यादातर लोग नहीं कहते क्योंकि इससे लगता है कि वो लोग बुज़दिल हैं या डरते हैं। तो इसीलिए इधर पर युद्ध होने वाला है, और वो भी बहुत ही घमासान, जब लोग मर जाएंगे काफ़ी लोग, और सब इनके रिलेशन वाले ही हैं। ये देखकर उनको बहुत ही डर लगा और वो बिल्कुल घबरा गए। In the past, he had slain innumerable warriors in many a battle, but he had never been felt so dejected. Never had his bow Gandiva slipped from his hand, never had he trembled so, never had welled up in his eyes. Then why was all this happening now? Was he coming to arbor violence like King Ashoka? अब इधर पर ये लोग समझ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इतने घबरा रहे हैं और ट्रेम्बल हो रहे हैं फाइट करने से। क्या ऐसा तो नहीं कि इनको भी जैसे किंग अशोक थे उनने लड़ाई छोड़ दी थी, क्या इनको भी ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये वॉयलेंस है इसलिए इनको भी छोड़ देना चाहिए? क्या ये बात थी? मगर बात ये नहीं थी। बात ये थी कि ये घबरा रहे थे इस बात को देख के कि दोनों इनके तरफ के लोग जो हैं वो इनके खुद के भाई बहन और इनके पिता और इनके जो भी रिलेशन वाले लोग थे, सब ये लोग थे, और इसी वजह से वो काफ़ी घबरा रहे थे और ये देख के इनको बुरा भी बहुत लग रहा था, इसलिए लड़ना नहीं चाह रहे थे। Certainly no, it was nothing but attachment to his kith and kin. Had those in front of him not been his kinsmen, he would even now have felt no qualms in severing their head and merrily tossing them around. But attachment to the kith and kin clouded his sense of duty, and then he started philosophing. When a man with a sense of duty is caught in delusion, he cannot face his lapse from the duty. He tries to justify it by citing lofty principles. The same thing happened with Arjuna. He now started putting before Krishna, to convince him, the spacious argument that war in itself was a sinful, that it would destroy the clan, eclipse dharma,
and lead to moral anarchy, scarcity and devastation and bring many other disasters upon the society. अब यहाँ पर अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे थे कि दोनों साइड के जो लोग थे उनके ही रिश्तेदार थे, और उनको ये लग रहा था कि ये इन लोग को कैसे मार पाएंगे और कैसे इनको झगड़ा कर पाएंगे, इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। और इसी वजह से इनने कुछ ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया कि अगर लड़ाई होगी तो डिवास्टेशन हो जाएगा और सब कुछ अपनी सोसाइटी में डिज़ास्टर आ जाएगा और स्कैसिटी हो जाएगी। मतलब सब उनने ऐसे ऐसी चीज़ें जो एक्सक्यूज़ेस होते हैं जो जनरली अपन देना शुरू करते हैं जब अपन को कोई काम नहीं करना होता है, तो वही उनने बोलना शुरू कर दिया और वो कृष्ण से ये बातें कर रहे थे। आई एम reminded here of the story of a judge. He had sentenced to death hundreds of criminals, but one day his own son, accused of murder, was produced before him. The guilt was proved, and the time came for the judge to pronounce the sentence, but then he hesitated and started arguing. The death sentence is inhuman. It does not behove a man to inflict such a punishment. It destroys all hopes of reforming the guilty. One commits murder in a fit of passion. The moment of bloodthirsty madness then passes off. Still, we coolly take him to the gallows and hangs him to death. It is disgraceful to humanity. Such were the judgment's argument. But had his son not been there, he would have gone on sentencing people to death. His arguments lacked inner conviction. They were born out of the attachment of his son. Okay, अब यहाँ पर एक स्टोरी याद आती है और वो स्टोरी एक जज की थी। वो जज जो थे क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देते थे और अक्सर उनको कोई ना कोई जो ज़्यादा ही बड़े क्राइम होते थे उसके लिए उनको डेथ सेंटेंस देते थे, जिसलिए हैंग टिल डेथ जैसे बोलते हैं, तो वो वाला किया जाता था, हैंग किया जाता था। तो यहाँ पर जब ये अपने बेटे को देखते हैं कि वो मर्डर करके आया है तो उनको बहुत ही बुरा लगता है और वो एक्सक्यूज़ेस देना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि इसने तो ज़रूर कोई बहुत ही उस टाइम ये क्रेज़ी रहा होगा तब उसने ये ऐसा कुछ काम किया है, मगर अब ये नॉर्मल हो गया है और अभी ये कोई ऐसा ना काम करे, इसके लिए इसको रिफॉर्म होना चाहिए, इसको अपनी गलती को महसूस करने के लिए इसको एक मौका देना चाहिए, इसको डेथ ना दे के इसको कोई और सज़ा दे देना चाहिए और ये डिसग्रेस है ह्यूमैनिटी पे कि लोगों को मार दिया जाए। तो ये सब टाइप के वो आर्ग्यूमेंट्स देना उनने शुरू कर दिया कि कैसे भी करके उनका बेटा बच जाए। मगर अगर उस बेटे की जगह कोई और होता, उनकी बेटे की जगह, तो वो ज़रूर उसको डेथ सेंटेंस ही देते।